Cell cycle is a series of event in which a mother cell or a cell divide into dotted cells. It is a series of event in which a cell prepare itself. Cell अपने आप को तैयार करता है and then it divide into dotted cells. So first of all, cell cycle, there are two major phases of cell cycle. First one is interphase and second one is the mitotic phase. Interphase is the long duration phase in which a cell takes 90% of its time to prepare itself. Interphase is further divided into G1 phase, S phase and G2 phase. Interphase is it is a time where cells metabolic activity is very high. यहाँ पे सेल की metabolic activity बहुत ज़्यादा high हुई. Metabolic activity mean number of chromosomes increase, number of proteins increases, number of enzymes are increases. So cells metabolic activity are very high. There are three interphases divided into three phases: G1, S and G2 phase. First of all, we will discuss about what is G1 phase. G1 phase, it is the first phase of the interphase, gap 1 phase. It is also called gap 1 phase. In this phase, cells metabolic activity is very high. Cell number of chromosomes, number of proteins are increased in this step. Cell size increases. Number of organelles are increased in this step. So सेल साइज इज़ इंक्रीज. जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्गेनेली इंक्रीज़ होंगी या प्रोटीन नंबर इंक्रीज़ होगा, राइबोसोम नंबर इंक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियसली सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. एंड इस स्टेप पे वो एंजाइम्स बनते हैं. दिस phase marked by the synthesis of various enzymes which are required for S phase. यहाँ पे इस फेज़ में ऐसे एंजाइम्स बन जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं एस फेज़ के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो एस फेज़ पर सेल नहीं पहुँच पाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो सेल G1 फेज़ इट इज़ अ टाइम where cells metabolic activity is very high. Cells number of protein are increased, number of organelles are increased, enzymes are increased. Production of enzymes takes place which are required for S phase. वो वाले एंजाइम बन जाएंगे जो S phase के लिए चाहिए होंगे. Second phase is the S phase. After G1 phase, cell enters in S phase. S phase is also called as a synthesis phase. In this phase, cells number of chromosomes are increased. सेल्स इंक्रीजेज या कह सकते हैं कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल के पास आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले G1 फेज़ में हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर सिंगल हो, डबल ना हुआ वो. तो यहाँ पे आके सेल अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में या 4 डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डबल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंथेसिस फेज़ है. इस फेज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इंक्रीज्ड. ठीक है, हर क्रोमोसोम हैज़ सिस्टर क्रोमैटिड्स नाउ. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक क्रोमोसोम पहले था, एस फेज में पहुँच के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड. ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. So in S phase there is number of duplication of chromosomes takes place. So it is the next phase is G2 phase. In G2 phase it is also called gap 2 phase. In this phase synthesis of those proteins takes place which are required for M phase. यहाँ पे वो वाली प्रोटीन्स बन जाएंगी जो M फेज़ के लिए, माइटोटिक फेज़ के लिए ज़रूरी होंगी. अगर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्या होते हैं स्पिंडल फाइबर. तो यहाँ पे ऐसी प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी. बाकी चीज़ें तो बनी हुई हैं, G1 फेज़ में बन चुकी हैं, S फेज़ में बन चुकी हैं. G2 फेज़ में ऐसी चीज़ें बनेंगी, ऐसी प्रोटीन्स बनेंगी जो माइटोटिक फेज़ के लिए ज़रूरी होंगी. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे इसी तरह की तरह जब यहाँ पे एंजाइम्स बन रहे थे, अगर नहीं बनेंगे तो एस फेज़ में नहीं जाएगा. बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही G2 फेज़ में ऐसी प्रोटीन्स अगर नहीं बन रही विच आर रिक्वायर्ड फॉर M फेज़, तो सेल M फेज़ में एंटर नहीं हो पाएगा. तो ऐसी प्रोटीन्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगी विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. So students, these are the 3 phases of the interphase, G1, S and G2 phase. आपकी बुक्स में एक और फेज़ भी बताई हुई है which is G0 phase. G0 phase वो कंसीडर नहीं होती इन फेजेस में.
क्यों कंसीडर नहीं होती वो हम देख लेते हैं। G0 फेज़ यहाँ पे आपको बना हुआ साइकिल में नज़र आ रहा होगा। G1 फेज़ के बाद S फेज़ आया हुआ है, हमने अलग से G0 फेज़ बनाया हुआ है। G0 फेज़ का क्या मतलब है कि कुछ सेल्स जो होते हैं विच दे गो सेमी परमानेंटली, परमानेंटली और टेम्परेरी इन G0 फेज़। G0 इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप डिवाइडिंग फेज़। यहाँ पे सेल्स अपने आप को अभी डिवाइड नहीं होना होता, जिन्होंने वो वहाँ G0 फेज़ में चले जाते हैं, जिन्होंने M फेज़ में नहीं जाना होता। सो G0 फेज़ में 3 तरह की सिचुएशंस बताई हुई हैं कि कुछ सेल्स जो हैं वो परमानेंटली चले जाते हैं G0 फेज़ में फॉर द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम। वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ सेम सेल्स गो indefinite period of the in G0 phase। सो इन सेल्स में आ जाएंगे आपके न्यूरॉन्स के सेल्स। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन हैं, जो ब्रेन का यूनिट है फंक्शनल, वो G0 फेज़ में परमानेंटली चले जाते हैं, वो कभी भी डिवाइड नहीं होंगे जब डेवलपमेंट हो चुकी होगी एक दफ़ा। उसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं वो टेम्परेरी तौर पे थोड़े से टाइम के लिए, सेमी परमानेंटली कह सकते हैं, वो G0 फेज़ में चले जाते हैं जब तक उन्होंने ज़रूरत नहीं होती डिवाइड होने की। सो उन सेल्स में आ जाएंगे किडनी और लीवर के सेल्स। इसके अलावा कुछ और सेल्स होते हैं बॉडी में, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कभी भी नहीं जाएंगे कभी भी G0 फेज़ में नहीं जाते, वो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। उन सेल्स में हमारे पास आ जाते हैं आपके स्किन सेल्स। सो यहाँ आपका इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है सेल साइकिल का फर्स्ट फेज़, इंटरफेज़। यहाँ पे सेल अपने आप को 90% टाइम लेता है प्रिपेयर करने के लिए। जब वो प्रिपेयर सही तरीके से हो जाता है प्रिपेयर, देन वो माइटोसिस में एंटर होगा, M फेज़ में एंटर होगा। सो हम स्टूडेंट्स हम समराइज़ कर लेते हैं अपना आज का लेसन क्या पढ़ा है हमने, कि एक सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट, आपको नजर आ रही है सीरीज ऑफ इवेंट इन विच अ सेल प्रिपेयर इटसेल्फ एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटेड सेल्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेजर फेजेस, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। 90% यहाँ पे टाइम लगेगा सेल को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, बाकी 10% जो होगा वो माइटोटिक फेज में लग जाएगा। इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस। फर्स्ट is G1, S and G2 phase। G1 is a gap 1 phase। इसमें सेल अपने आप के अंदर प्रोटीन नंबर इंक्रीज़ करेगा, ऑर्गेनेलिज नंबर इंक्रीज़ होगा, सेल साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और G1 फेज़ में ऐसी एंजाइम्स बनना शुरू होंगे विच आर रिक्वायर्ड फॉर द S फेज़। In S phase, which is next to G1 phase, in S phase number of chromosomes are increased, number of chromosome increase होंगे S phase में, and each chromosome has its 2 sister chromatids now। Next to S phase, which is G2 phase, gap 2 phase। In gap 2 phase number of those proteins are produced which are required for the spindle fibers in M phase। माइटोटिक phase में जो प्रोटीन्स हों ज़रूरी होंगे स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, क्योंकि माइटोटिक फेज़ में हमें स्पिंडल फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो पता चल जाएगा क्या होती हैं। तो वो बनाने के लिए हमारे पास S फेज़, G2 फेज़ में प्रोटीन नंबर हमारे पास वो होने चाहिए जो M फेज़ में ज़रूरत होगी हमें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर स्पिंडल फाइबर। सो G0 फेज़ इज़ अनदर फेज़ इन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंस फेज़। सेल स्टॉप डिवाइडिंग, यहाँ पे जाएंगे ऐसे सेल्स जिन्होंने डिवाइड नहीं होना होता। कुछ इसमें बताए हुए हैं कि परमानेंटली चले जाते हैं G0 फेज़ में, उसमें आ जाएंगे आपके न्यूरॉन्स के सेल्स। कुछ चले जाते हैं सेमी परमानेंटली, उनमें किडनी और लीवर के सेल्स आ जाएंगे। एंड कुछ कभी भी नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं आपके डिवाइडिंग फेज़ में हमेशा रहते हैं वो, तो उनमें आ जाएंगे आपके एपिथेलियल सेल, इन्होंने बोला हुआ यहाँ पे। तो एपिथेलियल सेल में आपके स्किन सेल्स ही आते हैं। जैसे आपको वूंड हो गया, ज़ख़म हो जाता है, कभी इंजर्ड हो जाते हैं आप, तो थोड़े दिन बाद वो हील हो जाता है, तो वैसे वाले जो होंगे सेल्स वो एपिथेलियल सेल्स में आ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।